Now today's topic is direction angles and direction cosines. एक वेक्टर है ओ है, तीनों एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. Angle made by vector OA with x axis in an angle. This angle is alpha. Angle made by vector A with y axis beta है, and y axis से लेके वेक्टर तक एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है बीटा. Angle made by z axis with vector A. Vector A means this vector. This angle is gamma. इतना एंगल gamma है. Angle made by vector A with z axis, इधर का एंगल ले लेते हैं, z axis to vector A anti-clockwise direction, the angle is gamma. Then these angles alpha, beta, gamma are called as direction angles. Angle alpha, beta, gamma are called direction angles of vector A. Direction angles का मतलब angles made by vector A with positive x axis, positive y axis, positive z axis. वेक्टर ए के एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ में एंगल है बीटा, जेड एक्सिस के साथ में एंगल है गामा. देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल्स. और इनके कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स, दैट मींस cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स जैसे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OA. That means vector A. Vector OA या vector A के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए. लेट अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू 0 से लेकर 180 तक होना चाहिए. Be the angles made by a non-zero vector A with positive x axis, y axis, z axis respectively. Then these angles are called as direction angles of vector A. And cosine of these angles, that means cos alpha, cos beta, cos gamma, you get direction cosines. And direction cosines are denoted by L, M, N. And cos alpha equal to L, cos beta equal to M, cos gamma equal to N. This standard notations है. We write L equal to cos alpha, M equal to cos beta, N equal to cos gamma. Direction cosines of any line along vector A has the same direction cosines as that of vector A. वेक्टर A के along कोई भी लाइन देता है तो वो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस और वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस सेम रहते हैं. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन along वेक्टर A और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर A बोथ आर सेम. वेक्टर A कंसीडर करेंगे अपन वेक्टर A इक्वल टू A1 वेक्टर I प्लस A2 वेक्टर J प्लस A3 वेक्टर K. वेक्टर I, वेक्टर J, वेक्टर K यूनिट वेक्टर्स है along coordinate axis. वेक्टर A in terms of components. अल्फा एंगल का है, एंगल मेड बाय वेक्टर A with x axis. x axis है, x axis के ऊपर का यूनिट वेक्टर है वेक्टर I. y axis के ऊपर का यूनिट वेक्टर है वेक्टर Z. z axis का यूनिट वेक्टर K. तो वेक्टर अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर I. तो अपने पास है cos थीटा का फॉर्मूला है. Angle between vector A and vector B is given by the formula cos theta equal to vector A dot vector B upon mod vector A into mod vector B. Angle between vector A and vector B is given by this formula. अपने एंगल किसमें का होना? एंगल अल्फा इट इज बिटवीन वेक्टर A and unit vector I which is along x axis. फिर फॉर्मूला आएगा cos थीटा इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर I अपॉन मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर I. cos अल्फा इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर I अपॉन मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर I. वेक्टर A मींस A1 वेक्टर I प्लस A2 वेक्टर J प्लस A3 वेक्टर K इन डॉट वेक्टर I अपॉन मॉड वेक्टर A. इसको सिंप्लीफाई करेंगे A1 इंटू वेक्टर A डॉट वेक्टर I plus A2 into vector J dot vector I plus A3 into vector K dot vector I upon mod vector A. Vector I dot vector I 1, vector J dot vector I 0, vector K dot vector I 0. यानी आखिर के दोनों टर्म 0 के A1 into 1 यानी A1 upon mod vector A.
a1 upon mod vector a, and this is cos alpha. Similarly, beta angle है angle between vector a and y axis and vector j. तो cos beta equal to a2 upon mod vector a, cos gamma equal to a3 upon mod vector a. cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. cos square alpha है a1 upon mod vector a का square, a1 square upon mod vector a square plus a2 upon mod vector a का square, a2 square upon mod vector a square. बाद में cos square gamma means a3 upon mod vector a का square, a3 square upon mod vector a square. इससे में mod vector a square, numerator a1 square plus a2 square plus a3 square. लेकिन वेक्टर a कौन सा वेक्टर था? वेक्टर a इक्वल टू a1 वेक्टर i प्लस a2 वेक्टर j प्लस a3 वेक्टर k. वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मॉड वेक्टर a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. न्यूमरेटर है मॉड वेक्टर a स्क्वायर, डिनोमिनेटर मॉड वेक्टर a स्क्वायर, ये कैंसिल इक्वल टू 1. एंड अपने पास में एक आइडेंटिटी आ गई जो एग्जांपल में काफी यूजफुल है. cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma it is equal to 1. alpha beta gamma are direction angles of vector a, direction angles of any line. Then we have cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. cos alpha की वैल्यू है l, cos beta की वैल्यू है m और cos gamma इक्वल टू n. वही आइडेंटिटी तैयार हो जाएंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1. This one. Now vector a equal to a1 vector I plus a2 vector j plus a3 vector k. a1 की वैल्यू कितनी थी? मॉड वेक्टर है cos अल्फा, अपन ये फाइंड किया था cos अल्फा इक्वल टू a1 अपॉन मॉड वेक्टर a. Similarly cos beta equal to a2 upon mod vector a. cos gamma निकाला था अपन ने a3 upon mod vector a. तो a1 की वैल्यू हो गई mod vector a into cos alpha, a2 की वैल्यू mod vector a into cos beta और mod a3 की वैल्यू mod vector a into cos gamma. mod vector a कॉमन cos alpha into vector I plus cos beta into vector j प्लस cos gamma into वेक्टर k. ये हो गया वेक्टर a इक्वल टू, दिस इज वेक्टर a. वेक्टर a अपॉन मॉड वेक्टर a इट इज इक्वल टू cos alpha into वेक्टर I प्लस cos beta into वेक्टर j प्लस cos gamma into वेक्टर k. वेक्टर a अपॉन मॉड वेक्टर मींस यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a इक्वल टू cos alpha वेक्टर I प्लस cos beta into वेक्टर j प्लस cos gamma into वेक्टर k. यहाँ पर वेक्टर a के यदि डायरेक्शन कोसाइंस पता है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर a, तो अपन डायरेक्ट यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a निकाल सकते हैं. यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a इट इज cos अल्फा इनटू वेक्टर i प्लस cos बीटा इनटू वेक्टर j प्लस cos गामा इनटू वेक्टर k. सो वेक्टर a1 वेक्टर i प्लस a2 वेक्टर j प्लस a3 वेक्टर k. ये अर्थ में याद रखना है इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड वेक्टर a इनटू cos अल्फा वेक्टर i प्लस cos बीटा वेक्टर j प्लस cos गामा वेक्टर k. ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए कोई रिजल्ट काम में आता, एग्जांपल सॉल्व करते वक्त ये भी रिजल्ट काम में आता. सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ. यानी वेक्टर a इक्वल टू a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k. a1 की वैल्यू हो गई मॉड वेक्टर a इनटू cos अल्फा इनटू वेक्टर i प्लस a2 की जगह पर मॉड वेक्टर a इनटू cos बीटा इनटू वेक्टर j प्लस a3 की वैल्यू है मॉड वेक्टर a इनटू cos गामा इनटू वेक्टर k. इसमें मॉड वेक्टर a कॉमन ब्रैकेट में cos अल्फा इनटू वेक्टर i प्लस cos बीटा इनटू वेक्टर j प्लस cos गामा इनटू वेक्टर k. वेक्टर a से मॉड वेक्टर a से डिवाइड किया तो वेक्टर a अपॉन मॉड वेक्टर a इट इज इक्वल टू cos अल्फा इनटू वेक्टर i प्लस cos बीटा इनटू वेक्टर j प्लस cos गामा इनटू वेक्टर k.
लेकिन वेक्टर है अपॉन मॉड वेक्टर है, व्हाट इज दिस, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर है। तो वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर है का ये फॉर्मूला तैयार हो गया, cos अल्फा इनटू वेक्टर r प्लस cos बीटा इनटू वेक्टर a प्लस cos गामा इनटू वेक्टर a। So the direction cosines of vector A are the components of unit vector in the direction of vector A. Second number में direction angles of x axis, angle made by x axis with x axis, angle made by line with itself 0 का x axis और y axis में का एंगल है 90 डिग्री, x axis और z में axis में का एंगल है 90 डिग्री, यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस हो गए cos 0 cos pi by 2 cos pi by 2, cos 0 1 cos pi by 2 0 है तो 1 0 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस रहेंगे 0 1 0, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस 0 0 1। पहले ये डायग्राम ले लो, एक लाइन है L डैश, L डैश को पैरेलल लाइन ओरिजिन में से ड्रॉ किए, पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका नाम लेते हैं वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो L O A डैश। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। एंगल मेड बाय वेक्टर ओ एल, इधर का वेक्टर विद x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस है अल्फा बीटा गामा। तो एंगल मेड बाय वेक्टर ओ ए डैश इट विल बी पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा, यानी ये एंगल यदि अल्फा लेते हैं तो बचे हुए एंगल रहेंगे इधर का है पाई माइनस अल्फा, दिस वन इज पाई माइनस अल्फा, और ये एंगल है अल्फा तो ये होगा बचे हुए एंगल पाई माइनस अल्फा। एंड वेक्टर ओ एल एंड वेक्टर ओ ए डैश are the two vectors in the direction of line LL dash. Alpha, beta, gamma are the angles of OL dash, vector OL dash. Then डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर OL डैश, OL के अल्फा बीटा गामा, OL डैश के आएंगे पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OL cos अल्फा cos बीटा cos गामा, यानी L M N। तो वेक्टर OA डैश इसके डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे cos पाई माइनस अल्फा cos पाई माइनस बीटा cos पाई माइनस गामा। फॉर्मूला है cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस cos गामा, दैट मींस L माइनस L माइनस M माइनस N। Therefore, the direction cosines of LL dash, line LL dash के direction cosines L M N और माइनस L माइनस M माइनस N ले सकते हैं अपन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L O L डैश R प्लस माइनस L प्लस माइनस M प्लस माइनस N। बाद में डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस R L M N। ABC are the three numbers, तीनों नंबर कैसे है कि these three numbers are proportional to element, proportional to element means L by A equal to M by B equal to N by C. Then these numbers are called as direction numbers or direction ratios of the line, whose direction cosines are element. If element are direction cosines of the line, ABC are proportional to element, that means L upon A equal to M upon B equal to N upon C. Then ABC are called direction ratios or direction numbers or direction proportionals और proportional direction cosines, ये चार अलग अलग नाम है। मोस्ट यूजफुली यूज नेम है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स, ये ज्यादा यूज में आते हैं। डायरेक्शन proportionals or proportional direction cosines of that line. Direction cosines in terms of direction ratios. Direction cosines है L M N, निकालना in terms of ABC. Let L M N be the direction cosines and ABC be the direction ratios of the line. ये दोनों में रिलेशंस क्या है?
L by A equal to M by B equal to N by C. The ratio equal है, suppose it is equal to K. And therefore L by A equal to K, तो L equal to A into K. M by B equal to K, तो M equal to B into K. N by C equal to K, तो N equal to C K. ये हो गए तीनों इक्वेशंस. L equal to A into K, M equal to B into K, N equal to C into K. तो इसको स्क्वायरिंग करके ऐड करना है. स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 2 3. स्क्वायरिंग के बाद L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस C स्क्वायर K स्क्वायर. लेकिन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 है और यहाँ पे K स्क्वायर कॉमन, तो 1 इक्वल टू K स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और K स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. K इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. अब ये K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तीनों इक्वेशंस में. Putting the values of K in equations 1 2 3, we get L की वैल्यू है AK, K की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. ये हो गया प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. Similarly, M की वैल्यू प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. N की वैल्यू प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. L M N you get direction cosines in terms of ABC in terms of direction ratios. So these are the formula. ये फॉर्मूला भी याद करना है. डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो एक फॉर्मूला अपने पास में प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. इसके बाद में आते हैं अपना डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स गिवन है A और B. A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1. B के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2. तो AB के डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. The direction ratios of a line passing through two points A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 are x2 minus x1, comma y2 minus y1 is a comma z2 minus z1. These are the values of A, B, C. x2 minus x1 is A, y2 minus y1 is B, z2 minus z1 is C. इसके ऊपर क्या एग्जांपल्स. एग्जांपल में लाइन के एंगल्स गिवन है. पहले एग्जांपल में एंगल्स मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव x y z एक्सिस गिवन है. If the line makes 90 degree, 135 degree, 45 degree with x, y, z axis respectively, निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइंस. Angle alpha, beta, gamma, direction angles. The direction cosines are cos alpha, cos beta, cos gamma. यहाँ पे cos alpha, cos beta, cos gamma निकालेंगे. Let alpha, beta, gamma be the angles made by the line with positive x, y, z axis respectively. यानी alpha की वैल्यू होगी 90 डिग्री, बीटा 135 डिग्री, गामा 45 डिग्री. cos alpha इक्वल टू cos 90 डिग्री, cos 90 0 है. cos beta इक्वल टू cos 135 डिग्री और cos 135 कैसे निकालना है. वन 180 माइनस 45 cos 180 डिग्री है पाई, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos 45 डिग्री. cos 45 1 by root 2 तो माइनस 1 by root 2. cos gamma equal to cos 45 degree, cos 45 degree 1 by root 2. cos alpha, cos beta, cos gamma, that means 0 minus 1 by root 2, 1 by root 2. These are the direction cosines of the line. Second example, a line makes angles of 45 degree and 60 degree with positive directions of y and z axis. एंगल विद y एक्सिस और z एक्सिस, यानी एंगल कौन से हो गए बीटा और गामा. दो एंगल गिवन है. फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस. एंगल विद x एक्सिस यानी अल्फा निकालना है. पहले
general sentence, let alpha, beta, gamma be the angles made by the line with positive x, y, z axis respectively. Beta equal to 45 degree, gamma equal to 60 degree, alpha to find. अपने पास में आइडेंटिटी है cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. cos square alpha plus cos square beta, beta की वैल्यू 45 डिग्री plus cos square gamma, gamma की वैल्यू 60 डिग्री. cos alpha 1 by root 2, cos 45 डिग्री 1 by root 2, 1 by root 2 का स्क्वायर 1 by 2. cos square 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री 1 by 2, 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4, 1 by 2 plus 1 by 4, 3 by 4 हो गए. LCM 4, न्यूमरेटर 2 plus 1 यानी 3 by 4, 3 by 4 को ट्रांसफर किया तो 1 minus 3 by 4. cos square alpha equal to 1 minus 1 by 4, 1 minus 3 by 4. 1 minus 3 by 4 means 1 by 4. स्क्वायर रूट लेते वक्त आंसर प्लस माइनस cos alpha equal to plus minus 1 by 2. तो यानी cos alpha की दो वैल्यूज आ गई, cos alpha equal to 1 by 2 और cos alpha minus 1 by 2. 1 by 2 के लिए एंगल है 60 डिग्री, माइनस 1 by 2 के लिए निकालना रहा तो 180 minus 60 करना है, यानी 180 minus 60 means 120. 1 by 2 के लिए एंगल है 60 डिग्री, तो माइनस 1 by 2 के लिए 180 minus 60, 180 minus 60 ये हुआ 120. cos के लिए cos pi minus alpha that is minus cos alpha. बीटा गिवन है, गामा गिवन है, अल्फा निकालना है. आइडेंटिटी cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. cos square alpha plus cos square 45 degree plus cos square 60 degree equal to 1. cos 45 1 by root 2, 1 by root 2 का स्क्वायर 1 by 2, 1 by 2 cos 60 degree 1 by 2, 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4, 1 by 2 plus 1 by 4 हो गए 3 by 4, 3 by 4 को ट्रांसफर किया तो 1 minus 3 by 4 यानी 1 by 4. cos alpha equal to plus minus 1 by 2, that means cos alpha equal to 1 by 2 और cos alpha equal to minus 1 by 2. 1 by 2 के लिए एंगल है 60 डिग्री, तो minus 1 by 2 के लिए pi minus 60, 180 minus 60 means 120 डिग्री. Third example है find the direction cosines of the line which lies in z-x plane and makes an angle of 30 degree with positive z-axis. यहाँ पे z एक्सिस के साथ में एंगल लेना गामा गिवन है. और एक कंडीशन है कि लाइन z एक्स प्लेन में है, मतलब z एक्सिस है और x एक्सिस. z एक्स प्लेन, z एक्सिस और ये x एक्सिस इसको परपेंडिकुलर है y एक्सिस. लाइन z एक्स प्लेन में है यानी लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. यानी लाइन z एक्स प्लेन में है तो z एक्स प्लेन को परपेंडिकुलर है y एक्सिस, y एक्सिस लाइन को परपेंडिकुलर है, z एक्स प्लेन को परपेंडिकुलर है, y लाइन को परपेंडिकुलर. सो एंगल मेड बाय द लाइन विथ y एक्सिस 90 डिग्री. गामा 30 डिग्री, लाइन z एक्स प्लेन में एंड y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू z एक्स प्लेन एंड देयरफॉर y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन और एंगल मेड बाय द लाइन विथ y एक्सिस परपेंडिकुलर है 90 डिग्री. यह बीटा इक्वल टू 90 डिग्री. बाद में रिलेशन है cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. cos square alpha plus cos square 90 degree plus cos square 30 degree equal to 1. cos 90 is 0, cos 30 root 3 by 2, root 3 by 2 का स्क्वायर है 3 by 4, 3 by 4 को ट्रांसफर किया तो cos square alpha equal to 1 minus 3 by 4, 1 minus 3 by 4 means 1 by 4. cos alpha plus minus 1 by 2, cos beta equal to cos 90 degree that is 1 by 2. यहाँ पे एंगल निकालना नहीं है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है. cos beta 90 डिग्री था तो cos 90 डिग्री means 0. cos gamma 30 डिग्री है, cos 30 root 3 by 2 and therefore the direction cosines of the line are plus minus 1 by 2, 0, root 3 by 2. Fourth example, a line lies in z-x plane, same type of problem. Line lies in z-x plane and makes an angle of 60 degree with positive x-axis यानी अल्फा. अल्फा गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है. यहाँ पर अल्फा गिवन है 60 डिग्री, लाइन z-x प्लेन में
और z x प्लेन को परपेंडिकुलर है y axis is perpendicular to z x plane and therefore y axis is perpendicular to the line. y axis और लाइन में का एंगल है बीटा, तो बीटा इक्वल टू 90 डिग्री. दिस आइडेंटिटी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, बीटा 90 डिग्री, cos स्क्वायर गामा एज इट इज. cos 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos 90 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. ये 1/4 ट्रांसफर किया तो cos स्क्वायर अल्फा ना cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 minus 1/4. 1 minus 1/4 means 3/4. cos स्क्वायर गामा 3/4. cos गामा प्लस माइनस रूट 3/2 प्लस माइनस रूट 3/2. cos अल्फा यानी cos 60 डिग्री 1/2, cos बीटा cos 90 डिग्री 0, cos gamma plus minus 3/2. And therefore the direction cosines of the line are cos alpha, cos beta, cos gamma. यानी 1/2 0 plus minus root 3/2. Next example है, if a line makes alpha beta gamma angles alpha beta gamma with coordinate axis, then prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 1, cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma equal to -1. यहाँ पे given है alpha beta gamma are the angles made by the line with x y z axis respectively. Therefore cos square alpha plus cos square gamma plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. नंबर 1 में प्रूव करना पड़ेगा sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 2. That is sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. इतनी वैल्यू देंगे. sin square alpha means formula trigonometric formula 1 minus cos square alpha. sin square beta means 1 minus cos square beta. sin square gamma 1 minus cos square gamma. इक्वल टू हो गया 1 plus 1 दिस इज 3. माइनस साइन तीनों टर्म में से कॉमन, माइनस cos square alpha माइनस cos square beta माइनस cos square gamma, माइनस साइन कॉमन तो cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. इसके वैल्यू 1 तो माइनस 3 इंटू 3 बाद में माइनस ऑफ 1 3 minus 1 दैट मींस 2. sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma इक्वल टू 2. सेकंड नंबर में फिर से लेफ्ट हैंड साइड cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma. यहाँ पे फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, cos 2 alpha का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है 2 cos square alpha minus 1. cos 2 beta का फॉर्मूला 2 cos square beta minus 1. cos 2 gamma का 2 cos square gamma minus 1. मैंने 2 cos square alpha plus 2 cos square beta plus 2 cos square gamma, 2 कॉमन in bracket cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. -1 becomes -3. cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1 है तो 2 into 1 -3. 2 minus 3 means -1. ये होगा 2. ये जनरली एमसीक्यूज में आने वाले क्वेश्चंस है. ये हो गए इससे पहले के एग्जांपल्स हो गए, एमसीक्यूज में आते रहते हैं तो बोर्ड में भी. If a line has direction ratios for -8 12, direction ratios means A, B, C, then find its direction cosines. Direction cosines से निकालना पड़ेगा L, M, N. Direction ratios of the line are 4 -12 18. A equal to 4, B equal to -12, C equal to 18. Under root of a square plus b square plus c square and under root of 4 square plus -12 square plus 18 square. 4 का स्क्वायर है 16, -12 का स्क्वायर है 144, 18 का 324 equal to under root of 484, that means 22. And therefore L का फॉर्मूला प्लस माइनस a upon under root of a square plus b square plus c square प्लस माइनस a की वैल्यू हो गई 4 upon 22 प्लस माइनस 2/11. m की वैल्यू होगा प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस -12 अपॉन 22. और ये प्लस और माइनस ऊपर आ गया माइनस और नीचे हो गया प्लस, यानी माइनस प्लस 6/12. यानी ये पहली वाली प्लस लेते हैं तो सेकंड में पहली वाली माइनस आएंगे. प्लस 2/11 के साथ में -6/11 और -2/11 के साथ में प्लस 6/11.
ऐसा n इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस 18 upon 22 plus minus 9 by 11, and therefore the direction cosines of the line are plus minus 2 by 11 minus plus 6 by 11 plus minus 9 by 11. Next example, find the direction cosines of the line passing through 2 points. डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है यहाँ पे. 2 पॉइंट्स है. ए पॉइंट है -2 1 -8, सेकंड बी 4 3 -5. डायरेक्शन रेशियोज के लिए फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, and the direction ratios of AB are 4 -2 3 -1 -5 -8, and 4 plus 2 you get 6, 3 -1 you get 2, -5 plus 8 means 3, then 6 to 3. 6 to 3, these are the direction ratios. Direction ratios are A, B, C value. A equal to 6, B equal to 2, C equal to 3. Then find under root of A square plus B square plus C square. Under root of 6 square plus 2 square plus 3 square. 36 plus 4 plus 9. You have root 49, that is 7. A is given value plus minus A upon under root of A square plus B square plus C square. A की वैल्यू है 6, तो प्लस माइनस 6 by 7. बाद में m की वैल्यू प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस b की वैल्यू अगर 2 by 7 प्लस माइनस 2 by 7, और n की वैल्यू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस 3 by 7, and therefore direction cosines of the line are plus minus 6 by 7 plus minus 2 by 7 plus minus 3 by 7. नेक्स्ट एग्जांपल में फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9. वेक्टर निकालना है मैग्नीट्यूड 9 का, विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इक्वली इंक्लाइंड का मतलब तीनों एंगल्स अल्फा बीटा गामा इक्वल है. लेट वेक्टर u बी द वेक्टर विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स मेड बाय वेक्टर u विद कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली. इक्वली इंक्लाइंड है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा. cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha, क्योंकि बीटा की वैल्यू अल्फा गामा की वैल्यू अल्फा. 3 cos square alpha equal to 1, cos square alpha equal to 1 by 3, cos alpha equal to plus minus 1 by root 3. अल्फा बीटा गामा इक्वल है तो cos alpha cos beta cos gamma तीनों इक्वल है plus minus 1 by root 3. and therefore unit vector along vector u. Unit vector along vector u का फॉर्मूला cos alpha into vector I plus cos beta into vector j plus cos gamma into vector k, and plus minus 1 by root 3 into vector I plus minus 1 by root 3 into vector j plus minus 1 by root 3 into vector k. Unit vector along vector u means u cap equal to plus minus 1 by root 3 common vector I plus vector j plus vector k. लेकिन ये फॉर्मूला है वेक्टर u इक्वल टू मॉड वेक्टर u अपॉन u कैप. u कैप इक्वल टू वेक्टर u अपॉन मॉड वेक्टर u. अपने वेक्टर u निकालना है तो u कैप इनटू मॉड वेक्टर u. वेक्टर u इक्वल टू u कैप इनटू मॉड वेक्टर u. मैग्नीट्यूड गिवन है 9, मॉड वेक्टर u है 9 इनटू वेक्टर u क्या अपने पास में प्लस माइनस इक्वेशन नंबर 1 में प्लस माइनस 1 by root 3 into I plus j plus k, वेक्टर I plus वेक्टर j plus वेक्टर k. 9 into plus minus 1 by root 3 means plus minus 9 by root 3 into वेक्टर I plus वेक्टर j plus वेक्टर k. plus minus 9 by root 3, 9 by root 3 means 3 root 3. वेक्टर u equal to plus minus 3 root 3 into वेक्टर I plus वेक्टर j plus वेक्टर k. यहाँ पर वेक्टर u के एंगल्स लेंगे अल्फा बीटा गामा. इक्वली इंक्लाइंड है ना अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा. फिर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा की जगह अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा की जगह पे अल्फा इक्वल टू 1. यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा मींस 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1. cos स्क्वायर अल्फा 1 by 3 cos अल्फा प्लस माइनस 1 by root 3. अल्फा बीटा गामा इक्वल है तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1 by root 3.
एंड फॉर यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला cos अल्फा इंटू वेक्टर r प्लस cos बीटा इंटू वेक्टर j प्लस cos गामा इंटू वेक्टर k। cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके प्लस माइनस 1/√3 कॉमन। वेक्टर u का फॉर्मूला है मॉड वेक्टर u इंटू यू कैप। मॉड वेक्टर u मीन्स 9 इंटू यू कैप मीन्स प्लस माइनस 1/√3 इंटू वेक्टर r प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k प्लस माइनस 9/√3 दैट मीन्स प्लस माइनस 3√3 इंटू वेक्टर r प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k। सेम ब्रैकेट के प्रॉब्लम फिर से मॉड वेक्टर a इक्वल टू 8 वेक्टर m x एंगल्स 45 डिग्री 60 डिग्री विद x एंड z एक्सिस। x एक्सिस के साथ में अल्फा, z एक्सिस के साथ में एंगल रहता है गामा, अल्फा और गामा गिवन है। देन फाइंड वेक्टर a। अल्फा इक्वल टू 45, गामा इक्वल टू 60। बीटा निकालेंगे पहले cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 प्लस 1/4 ये हो गया 3/4। cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 मीन्स 1/4। cos बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, cos बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। cos अल्फा यानी cos 45 डिग्री दैट मीन्स 1/√2, cos गामा यानी cos 60 डिग्री 1/2। इसके ऊपर में निकालेंगे यूनिट वेक्टर एंड फॉर यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a cos अल्फा वेक्टर r प्लस cos बीटा वेक्टर j प्लस cos गामा वेक्टर k। cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू पुट करना है। cos बीटा की वैल्यू यहाँ पर है प्लस माइनस 1/2, cos बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 ये करेक्शन प्लस माइनस 1/2। वेक्टर a इक्वल टू फॉर्मूला मॉड वेक्टर a इंटू a कैप। मॉड वेक्टर a गिवन है 8 इंटू a कैप 1/√2 इंटू वेक्टर i प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/2 वेक्टर j प्लस 1/2 वेक्टर k। 8 से मल्टीप्लाई किया था 8 इंटू 1/√2 मीन्स 4√2 वेक्टर i प्लस माइनस 8 इंटू 1/2 मीन्स 4 वेक्टर j प्लस 4 वेक्टर k। आंसर वेक्टर a इक्वल टू 4 इंटू √2 वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस के एग्जांपल्स